Welcome at Exam Zone 247. Welcome at this session, and this session is especially for the forex officers, and it is also used for the generalist officer who want to increase their knowledge in the forex field and are preparing for the as a trade finance professionals willing to join as a trade finance professionals in various public sector or the private sector banks. I will be continuing this session mostly in Hindi as per your request received over WhatsApp. And before I just begin the session, I would like to give a brief idea about this in Hindi. जो भी फॉरेक्स ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, स्पेशली एसबीआई में जो ट्रेड फाइनेंस अभी लास्ट ईयर भी उसका अनाउंसमेंट हुआ था और वैकेंसीज आई थी, इस ईयर भी है, तो एसबीआई इस लेटरल एंट्री हायरिंग के लिए जो भी है, इफ़ यू आर नॉट वेरी वेल वर्स्ड एंड वेल एक्सपीरियंस इन द ट्रेड फाइनेंस, फर्स्ट दे वोंट बी शॉर्ट लिस्टिंग यू फॉर इंटरव्यू। तो एसबीआई आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करेगा अगर आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस ट्रेड फाइनेंस में नहीं है, तो आप उसमें अपना किसी भी तरह से कुछ भी फेक सर्टिफिकेट ऐसा लगा के ट्राई ना करें, बिकॉज whenever you will be using such a fake certificates, you do not have any exposure in the trade finance, you would not be able to relate your conceptual knowledge with the practices of trade finance. You and there would not be such a ऐसा इंटरव्यू होगा ही नहीं। लास्ट ईयर के इंटरव्यू में सीधे पूछा था एक बंदे से कि यूसीसी, जब यूसीसी है हमारे पास, ठीक है, तो यूसीसी की ज़रूरत क्या है, वाई यूसीसी इज़ रिक्वायर्ड, यूसीसी नहीं हो तो क्या ट्रेड नहीं होगा? तो अगर आपने ट्रेड में काम नहीं किया है, ट्रेड फॉरेक्स में काम नहीं किया है, तो फिर आपको बताना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ओके, पर यूनिफॉर्म रेगुलेशन फॉर द रिम्बर्समेंट क्यों है अगर यूसीसी है तो? ठीक है, अगर एलसी और बीजी में व्हाट विल यू प्रीफर? एक कस्टमर है, उसको आप एलसी दोगे या बीजी दोगे, और दोनों में कौन सा बेटर है बैंक के लिए और कौन सा बेटर है कस्टमर के लिए? तो ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि अगर आप ट्रेड फाइनेंस में काम नहीं कर रहे हैं, यू वुड नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस. You may answer that what is LC, what is letter of credit, what is documentary credit, what is the bank guarantee, but you would not be able to handle the situations, okay, the questions based on such situations. Okay, they will ask, have you received any red class LC? How you decided, how you find that this is the scanned copy, and how you will decide, how you get to know that this is a red class? Okay, have you received our green class? Have you given any green class? Which class LC you give to your customers? Okay, then in this case, if you are having some exposure in the trade finance, then you are most welcome with the SBI interview. But if you are not having any touch with that export and handling, import handling with your bank, you do not try to go first, you try to get that exposure in working field, because they not only the SBI, other banks like Bank of Baroda, very soon PNB or other banks, okay, including all 12 public sector banks, they are also showing their interest in lateral hiring. So you be prepared, and let us begin our session. Hope you will find this useful. Further, the PDF of this session will also be shared in the group. You may get that PDF from the group, and if you wish to enroll, you may text me over WhatsApp. The number is scrolling just over the screen. You may text over the WhatsApp for your queries and what next, what other things you want to get to know. So
as I already said that most of the things I will be explaining in Hindi as per your request, but it is not possible to teach all the things in Hindi, because most of things, if I will use the term as a translation in the Hindi, it would not be useful for you and you would not be able to catch with the same. So let's begin our session, and I hope that you will be finding it very useful. Okay, hope the screen is visible to you. This is an introduction to UCPDC 600, including the earlier versions. Earlier version means I will be telling that what were the earlier versions, कि UCPDC जो 600 आया है उसके पहले इसके अर्लियर वर्जन्स कौन से थे, मतलब इससे पहले भी ये अर्लियर वर्जन्स इसका कौन से आए थे और क्यों आए थे। ठीक है, इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, क्या चेंजेस आप अभी इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं, या ठीक है। फर्दर आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट URR 725, ओके, एंड आई विल आल्सो बी डिस्कसिंग इन दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट आर द डिफरेंसेस इन बिटवीन। सो लेट्स बिगिन। This is for bankers, if you are trade finance professionals, not only if you are aspiring trade finance professional or the aspiring banker to join a trade finance, you must be, this is, see, whenever, जब भी आप बैंक में कोई लोन देते हो तो आप हर बैंक के पास एक होता है लोन पॉलिसी, ओके, लोन पॉलिसी। इस लोन पॉलिसी में सब लिखा होता है कैसे, स्पेशली अगर आप किसी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, स्पेशली सिटीजन, अगर आप लोन दे रहे हो तो उस हर बैंक की अपनी लोन पॉलिसी होती है। सी, बट ट्रेड फाइनेंस के साथ क्या है ना, जनरली लोन क्या है, आप इंडिया में दे रहे हो, मोस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेट 100% ऑफ फॉर फ्यू लोन्स विच आर एक्सटेंडेड टू, like you are giving to someone as a supplier's credit or someone taking as the buyer's credit or other international loans. Excluding this, most of things you like housing loan, other consumer loans, vehicle loans, you give in India only, okay. But the trade finance is the different thing. Trade finance is the different thing, okay. You deal internationally, फॉर एनी लोन। जब भी आप कोई लोन देते हो, मान लो आप व्हीकल लोन दे रहे हो, तो आप सबसे पहले उसका इनकम देखते हो और कौन से डॉक्यूमेंट्स लेना है, व्हाट डॉक्यूमेंट्स यू टेक, ओके। उसकी हैंडलिंग कैसे करोगे, हाउ यू विल हैंडल दीज थिंग्स। फर्दर, सपोज आप हाउसिंग लोन दे रहे हो, देन यू विल मॉर्टगेज दैट हाउस एंड you will be extending along with the loan. When it is constructed, then the whole amount will be mortgage. But international terms में ये सब चीज़ें, ट्रेड से रिलेटेड में ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस, व्हाट डू यू मीन बाय UCPDC? डू यू नो कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस? कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, चलन, जो भी वहाँ पर चीज़ें हो रही, दैट्स कस्टम्स कैसे हैं, और उसको प्रैक्टिसेस के साथ इंटीग्रेट किया गया है। ठीक है, व्हाट इज UCP एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। होप आई विल बी प्रोवाइडिंग दिस, ये PDF आपको मिल जाएगी ग्रुप में, बट बेटर आप इसे पहले समझ लो कि व्हाट इज UCP एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म में हम UCP बोलते हैं, पूरा फॉर्म है UCPDC, यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स। ऐसे क्रेडिट्स जिनकी हैंडलिंग बैंक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू करते हैं, ओके, वेयर बैंक्स डील इन डॉक्यूमेंट्स ओनली। जैसे आप कोई भी सामान मंगा रहे हो, ठीक है, इट इज नॉट हाइपोथिकेटेड टू बैंक, ओके, इट इज नॉट हाइपोथिकेटेड अंडर दिस LC/RBG, इज योर गुड। क्यों? क्योंकि बैंक डॉक्यूमेंट्स में ही डील करेगा और वो डॉक्यूमेंट ही बैंक के पास रहेगा, बैंक के पास वो सामान नहीं रहेगा। बैंक उसका किसी भी तरह से सामान का कस्टोडियन नहीं है।
bank will be dealing only with the documents related to the transaction. Okay. डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट क्या है? डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट ये जो है ये आईसीसी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हालांकि एलसी का जो कॉन्सेप्ट है वो इससे पहले आ चुका था। एलसी इज द लेटर ऑफ क्रेडिट इज द you can say that it is the most old version. ओके, ये रिफाइंड वर्जन है। आईसीसी एक यूनिफॉर्म कस्टम्स ये रिफाइंड वर्जन ले आया कि हम किस तरह से यूनिफॉर्मिटी आए कि डिफरेंट कंट्रीज जो भी क्रेडिट्स डॉक्यूमेंट्स में डील हो रहे हैं, मतलब ऐसे कोई भी लोन जिनमें होल सोल बैंक के लिए डॉक्यूमेंट ही है, उसको किस तरह से कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस में लाया जाए कि हर जगह पे हैंडलिंग उसकी सेम तरीके से हो, सो दैट क्रेडिट सैंक्शन, क्रेडिट प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट सब आसान हो। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या था ओसीपी का? यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब जितनी भी कंट्रीज हैं जो ट्रेड फाइनेंस में डील कर रही हैं, एक यूनिफॉर्मिटी आए। क्लैरिटी मीन्स जो भी रूल्स हैं उनका इंटरप्रिटेशन, रूल्स को समझना, कौन से रूल्स कहाँ पे लगेंगे इस कंट्री के लिए या अनदर कंट्री के लिए, तो उस रूल्स को एक कॉमन लॉ की तरह ट्रीट करना और उस तरह से एक्ट करना, दैट पार्टीज मस्ट बी बाइंडिंग ऑन इट। हाउएवर देयर इज नो सच लीगल फोर्स। आपने बेसल का नाम सुना होगा, अगर आपने बेसल स्टडी किया हो तो बेसल का कोई लीगल फोर्स नहीं है, मतलब बेसल इज नॉट लीगली बाइंडिंग। इंडिया में बेसल अप्लाई लागू किया गया, बट इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन इंडिया। अच्छा, इंडिया अगर बेसल नॉर्म्स ना लागू करे तो क्या होगा? बेसल नॉर्म्स बैंक की स्टेबिलिटी के लिए है कि लिक्विडिटी मैनेज करे, बैंक्स डिफॉल्ट ना हो, बैंक के पास प्रॉपर लिक्विडिटी हमेशा बनी रहे, कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा बना रहे, ठीक है, कि बैंक्स फेल ना हो। अगर बैंक्स फेल होगा, सिस्टमेटिक रिस्क जो अभी तो जो भी वर्ल्ड है पूरा इंटीग्रेटेड है, तो सिस्टमेटिक रिस्क अभी ज़्यादा है। एक बैंक फेल होगा, दूसरा बैंक फेल, तीसरा बैंक फेल, बड़े बैंक फेल हुए तो ये ज़्यादा सिस्टमेटिक रिस्क ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। इन सब चीज़ों से इसी तरह इसलिए बेसल आया, ठीक है। ऐसे ही यूसीपीडीसी भी आप पे बाइंडिंग नहीं है, यू में फॉलो इट और यू मे नॉट फॉलो इट, बट इफ यू वुड नॉट बी फॉलोइंग इट, अगर आप इसको नहीं फॉलो करोगे तो अदर यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी कंडीशंस में, ठीक है, कि कौन से किस अंडर विच कंडीशंस द सैंक्शन प्रोसेस इज being done here and under which way the same is being sanctioned in the another country। तो इस सैंक्शन प्रोसेस, डीलिंग प्रोसेस, सैंक्शन प्रोसेस तो चलो हर बैंक का ठीक है, डीलिंग विद द डॉक्यूमेंट्स, डीलिंग विद सपोज 5 डेज का है स्क्रूटनी पीरियड, मतलब आपको 5 डेज में जो भी डॉक्यूमेंट आए हैं डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के थ्रू, अगर उसका एक्सेप्टेंस बैंक को या कुछ भी देना है, ठीक है, तो आपको 5 बैंकिंग डेज मिलते हैं, बैंक वर्किंग डेज। 5 डेज मतलब उसमें सैटरडे संडे या छुट्टियां काउंट नहीं होती हैं, उसके 5 डेज में मीन्स टू 5 डेज, ऑन 5th डे यू कैन आल्सो गिव। अब अगर आप यूसीपीडीसी कस्टम्स को कोई कंट्री नहीं मानती है और आपके पास वहां पे डॉक्यूमेंट गया, तो वो 1 मंथ के बाद देगा या 2 मंथ्स के बाद देगा, ठीक है, एक्सेप्टेंस, क्योंकि वो यूसीपीडीसी फॉलो नहीं कर रहा है। तो फिर इससे क्या होगा? डिले होगा, ट्रेड में डिले होगा, ठीक है, ट्रेड में इशू आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे। वो बोलेगा हमारे यहाँ 1 मंथ में एक्सेप्टेंस दिया जाता है, वो बोलेगा नहीं 5 डेज का रूल है। तो इसको यूनिफॉर्मिटी में, अच्छा अगर यूनिफॉर्मिटी रहेगी तो इफिशियंसी आ जाएगी, क्यों? क्योंकि दे आल्सो नो, उसको भी पता है कि भाई 5 डेज में आपको एक्सेप्टेंस देना है, तो 5 डेज में वो एक्सेप्टेंस दे के ख़त्म करेगा, ठीक। दिस इज द पर्पस ऑफ introducing UCPDC, okay, this is the and further there is the importance, okay।
Why UCP was needed? Similarly, this is for the objective was the uniformity, okay, to ensure the mechanism of documentary credits flows smoothly internationally, cross border, okay. This should not be binded by the specific law of any country, okay, specific rules and regulations of any country. See, it has facilitated smooth international trade by mitigating uncertainties. Uncertainties मतलब समझ रहे हो कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो आपके यहाँ दूसरे तरीके से मैनेज की जाती हैं, दूसरे के यहाँ दूसरे तरीके से। स्पेशली अभी जब हमने एग्जांपल दिया एक्सेप्टेंस का, तो ऐसा हो सकता है कि एक्सेप्टेंस कंट्री ए में कोई गाइडलाइन नहीं है कब देना है, और कंट्री बी सोच रही कि 5 डेज में एक्सेप्टेंस आएगा, एक्सेप्टेंस आया ही नहीं, डील रुकी हुई, ठीक है। तो इस वजह से इफिशियंसी भी आती है व्हेन वी आर वर्किंग अंडर ए कॉमन रूल। तो आप ये बोल सकते हो एक तरह से ये कॉमन लॉ है, ठीक है। फॉर किस लिए? सैंक्शनिंग के लिए नहीं है ये। दिस इज सी, ये क्वेश्चन पूछा गया था एलसी सैंक्शन में यूसीपीडीसी नहीं भाई। एलसी सैंक्शन की क्या प्रोसेस है ये आपके बैंक पे डिपेंडेंट है, किस तरह से एलसी की लिमिट आप डिसाइड करोगे। एलसी की लिमिट यूसीपीडीसी नहीं डिसाइड करेगा, ओके। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एसबीआई लास्ट ईयर ट्रेड फाइनेंस इंटरव्यू कि अंडर यूसीपीडीसी हाउ एलसी लिमिट इज डिसाइडेड बाय द कस्टमर, what is the maximum limit under UCPDC. See, UCPDC is not for the sanctioning. UCPDC is for the handling of documents. Handling of documents. What documents? The documents which are related to credit, especially documentary credits. Like letter of credit is the most efficient example in this case, okay. Now we will be seeing when UCPDC was started and what are the version, okay. First conceptualization of UCPDC, जो फर्स्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन था यूसीपीडीसी का, अच्छा किसने किया था ये? आईसीसी, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ओके। इंडिया में भी है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 1933 में यूसीपी 82 लाया। अच्छा, ये 82 का मतलब क्या है भाई? 33 में आया, 82 तो ईयर भी नहीं है। देखो आईसीसी क्या है? एक ऑफिस है। जब भी आप बैंक में होंगे, जो लोग बैंक में काम करते हैं, तो आप देखते हैं कोई भी बैंक से लेटर जाता है ना, उसका एक रेफरेंस लिखा होता है। दिस AX, मान लो HRMD को जा रहा है, HRMD TZ समथिंग समथिंग सीरियल नंबर 1। इस तरह से जब ये जिस सीरीज के थ्रू इशू होता है वो आईसीसी डिसाइड करती। इस नंबर का कोई मतलब नहीं है, ओके। अगर ये पूछा जाए सी लास्ट ईयर 600 में एक हमारे ही एग्जाम जोन के ही बच्चे ने ये इतना बेवकूफ़ी भरा आंसर दिया था यूसीपी 600 का ट्रेड फाइनेंस में 600 का, जबकि मैंने पहले ही ये बताया था वेरी फर्स्ट लेक्चर में, मैंने बोला था मीन्स इंटरव्यू के मॉक इंटरव्यू में कि 600 का कोई भी मीनिंग नहीं है, 500 का कोई भी मीनिंग नहीं है। दिस इज द वर्जन। 500 के बाद 600 आया मीन्स इट इज द न्यूअर वर्जन, ओके। अभी EUCP भी चल रहा है 2.1। इलेक्ट्रॉनिकली जो डॉक्यूमेंट्स हैंडल होते हैं उनके लिए EUCP चल रहा है, ठीक है। तो उस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पेशली अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए तो अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और ये जो भी है प्रॉपरली अपलोड किए होंगे आप भरते समय। अगर आपने नहीं किया है तो इमीडिएटली आप
स्कैंड कॉपी मेल करिए, ठीक है, HRMD को मेल करिए, ठीक है। सी आफ्टर दैट 1951 UCP 151, 1962 UCP 222 and UCP 290। सी वर्जन्स देखो, सीरीज बढ़ रही है। आफ्टर दैट 1983 UCP 400, यहाँ से 100 का मल्टीपल सीरीज स्टार्ट हुआ है, फिर अगेन UCP 500, देन नाउ रनिंग एंड इन फोर्स इफेक्टिव इज UCP 600। UCP 600 कब आया था? 2007 में। तो UCP 600 जो नया वर्जन चल रहा है वो 2007 में आया था। अभी ये जान लीजिए, UCP इज नॉट फॉर सैंक्शनिंग ऑफ LC। अगर आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जा रहा है कि वेयर यू अप्लाई UCP इन सैंक्शनिंग ऑफ LC, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि UCP documents will be governed by the UCP, but the LC limit is the like the sanctioning of a loan, and whose sanctioning of loan is done by loan policy, means LC लिमिट जो डिसाइड होगी वो UCPDC से नहीं डिसाइड होगी, वो डिसाइड होगी कि आपका जो बैंक है उसकी पॉलिसी क्या है, कितना मार्जिन रखना है, फिक्स डिपॉजिट लेना है, ठीक है, नहीं लेना है, कोलेटरल रूप में उसका घर लेना है, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, या कुछ नहीं है, फ्री में देना है, ठीक है, बैंक को डिसाइड करना है। ICC is not going to tell anything about LC limit, okay? ICC never prescribes any type of such limit. ICC prescribed only handling of documents, means how the documents will be handled, document handling का मतलब यह है कि डॉक्यूमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे किस तरह से जाएगा और उसको डील करने का, मतलब अगर उसकी एक्सेप्टेंस है या उसका रिजेक्शन है या उसमें डिस्क्रिपेंसी है, तो उन चीज़ों को किस तरह से हैंडल किया जाएगा, डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है, उस तरीके से दिया गया है कि नहीं जिस तरीके से दूसरी वाली पार्टी ने बोले थे, ठीक है। जैसे अगर मुझे बाहर से कोई सामान मंगाना है तो मैं अपना पैसा नहीं फंसाना चाहता, मतलब डायरेक्टली नहीं देना चाहता, तो मैं क्या करूँगा, LC ले लूँगा एक बैंक से। अब उस LC को में हमने लिख दिया कि भाई हमें ये चाहिए, हमें ये 3 कॉपी में ये चाहिए, बिल ऑफ लेडिंग का कॉपी चाहिए, ये चाहिए, साइंड चाहिए, और साइन क्या करना चाहिए, मालिक जो है, जो सेंडर है उसका साइन चाहिए, किसी एजेंट का भी नहीं चाहिए। अब देखो कि वो चीजें हैं कि नहीं, ये चीज है हैंडलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब कंडीशंस, जो डॉक्यूमेंट्स की कंडीशंस हैं, डॉक्यूमेंट्स मतलब ट्रेड कंडीशंस, ओके। लेट मी टेल यू थिंग, सी ट्रेड और बिजनेस ट्रांजैक्शन related terms and conditions, ये ICC बताएगा आपको कि किस तरह से हैंडल हुआ है कि नहीं हुआ है, उस तरह से हैंडल हुआ है कि नहीं हुआ है। बट लिमिट कितना होगा LC का, ये आपका बैंक बताएगा। कौन सा बैंक? जो बैंक LC इशू कर रहा है, इशूइंग बैंक। हम अभी थोड़ी देर में इस पे भी बात करेंगे, कौन सा इशूइंग बैंक होता है, कौन सा नेगोशिएटिंग बैंक होता है, कौन सा एडवाइजिंग बैंक होता है, एडवाइजिंग बैंक, इशूइंग बैंक, ठीक है, और नेगोशिएटिंग बैंक, इन सब में डिफरेंस क्या है, वी विल बी गोइंग थ्रू दिस बट आफ्टर दिस थिंग्स, ओके। सी UCPDC हैज अंडरगोन 6 मेजर रिविजन्स, मतलब अभी तक जो UCPDC इशू हुआ था, फर्स्ट इशू हुआ था
1933, उसके बाद रिवाइज होते होते टोटल 6 रिविजन्स हुआ और लेटेस्ट वर्जन है यूसीपी 600. ओके, यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस DC on documentary credits 600. What is the meaning of 600? 600 has no meaning. It is just a serial number, running number of the document under which ICC is releasing this version. Okay, ICC ने एक लेटर इशू, एक वर्जन इशू किया, एक लेटर ही समझ लो आप इसको. उसका रेफरेंस नंबर यहाँ पर कुछ लिख करके यहाँ पर इससे पहले लेटर गया होगा कोई 599, उसके बाद इसने इसको लेटर दे दिया 600. ओके, उसके रजिस्टर में ऐसा चढ़ा होगा जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो उस पर पूरा रेफरेंस नंबर डाल के आगे कौन किस कुरियर से भेजा, किसको भेजा, जोनल ऑफिस को भेजा, हेड ऑफिस को भेजा, ये सब देख करके हमें करना है. तो वही उसका नंबर है. वो 600 से कोई मतलब नहीं है, नथिंग टू डू. ऐसा नहीं है ये न तो मेंबर ऑफ कंट्रीज है, ठीक है. अच्छा, ऐसा कुछ है कि उसमें साइन करना? नहीं, कोई साइन करने की जरूरत नहीं है. वो एक गाइडलाइन है, ठीक है, वो एक गाइडलाइन है. आप उसको मानिए या ना मानिए, उसमें मेंबर जैसा होने से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक. की हाइलाइट्स और लेटेस्ट वर्जन ये आप पढ़ लीजिए. सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, ये पूछा गया था इंटरव्यू में आप लास्ट ईयर के. 600 का मीनिंग क्या है? कुछ नहीं, देयर इज नो स्पेस. ऐसे नहीं, आपको आंसर इंटरव्यू में इस तरह से नहीं बोलना है कि इसका कुछ मतलब नहीं है. आपको इंटरव्यू में आपको ऐसे एंटर देना. देयर इज नो, सर, देयर इज नो स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ द 600. इट इज जनरली अ रेफरेंस नंबर अंडर विच the new updated version is issued. Latest is the 600. From the 400 it is coming the multiples. ICC had decided to keep it in multiple so that it can easily be memorized or kept in visible to everyone. Okay, easily remember. Easily anyone can remember these 100 multiple numbers. It is up to the ICC. There is no specific meaning related to the 600. 600 here also quotes that after the 500 the 600 is the current version which is implemented since July 1st 2007. ओके, आपका आंसर ये होगा. अगर आप हिंदी में दे रहे हैं तो आप ये बोलिए कि सर 600 का कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है. जिस तरह से हम अपने लेटर्स भेजते हैं उसका एक रेफरेंस नंबर होता है 1 2 3, ऐसी आईसीसी में भी बहुत सारी चीज़ें इशू करता है. वो उसमें से डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट पे जो उसने इशू किया है वो 600 है. वो अभी इलेक्ट्रॉनिकली हैंडल होने वाले डॉक्यूमेंट्स को EUCP के हिसाब से भी इशू करता है. अभी EUCP वर्जन 2.1 चल रहा है. ओके, इस तरह से आपको आंसर देना है. नाउ टोटल आर्टिकल्स ये पूछ सकता है, ये पूछा भी गया है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द आर्टिकल्स? आर्टिकल्स मतलब कौन कौन सी चीजें हैं, किस किस चीजों को वो हैंडल करेगा. इस तरह के 39 आर्टिकल्स हैं UCP 600 में. ओके, व्हाट वर द मेन इश्यूज कंसीडर्ड इन शेपिंग UCP? मतलब नया वर्जन UCP 500 के बाद 600 आने का क्या मतलब था? देखो, एक तो ये था कि जनरली पहले बैंक ही इशू करते थे. ओके, मोस्टली बैंक ही इशू करते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट. बट अभी क्या है, बहुत सारे फाइनेंस कंपनीज आ गई हैं, ट्रेड फाइनेंस. इवन इन वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारी क्रेडिट यूनियंस हैं और ऐसे भी कॉरपोरेट्स हैं जो बैंक से जो केवल फाइनेंस का काम करते हैं, जो एक्चुअली बैंक्स नहीं है, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं. तो उसके लिए उन्होंने ये जो रिवाइज किया है उसमें उन सब चीज़ों को भी इंक्लूड किया है. जैसे इशूइंग बैंक को अभी इशूअर बोल दिया है, मतलब कौन इशू कर रहा है, ठीक है. उसमें से बैंक वर्ड हटा दिया है कि मतलब ये स्पेसिफिक टू बैंक नहीं है, ये उन सब के लिए है जो ट्रेड फाइनेंस में डील कर रहे हैं. ओके, इट इज नाउ applicable means acceptable to, whether they may accept or they may not accept, but it is all entities involved in trade finance. Okay,
simplified language and style reference and feedback from ICC. These practical challenge, what are the practical challenges? They may ask that what are the practical challenges, means examination timelines, जो भी था कि स्पेसिफिक टाइम बोलो कि कब तक ये डॉक्यूमेंट आप एक्सेप्ट करके एग्जामिन करके दे दोगे। मैं भाई एक बैंक से दूसरे बैंक के पास डॉक्यूमेंट आया, ये बैंक ए है, ये बी है, इस बैंक ने इसके पास डॉक्यूमेंट भेजा सभी एलसी के से रिलेटेड, ठीक है। इस बैंक को एग्जामिनेशन करना है और फिर इसको रिप्लाई भी करना है। अगर ये यूसीपीडीसी में ये कोटेड नहीं होगा, एक कॉमन गाइडलाइन होगा, तो ये इस बैंक को पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये एक्सेप्टेंस कब देगा। ओके, और इस बैंक को ऐसा भी नहीं पता है ना कि इसको ये पता है कि भाई इसका ट्रेड फाइनेंस का सेंटर ये है, फोन नंबर है, वहाँ के एजीएम है, चीफ मैनेजर हैं, ये हैं, ठीक है, इनको फोन कर लो, ऐसे नहीं चलता ना। एवरीथिंग मस्ट बी ऑन रिकॉर्ड। तो इसको इस तरह से वो करेगा, ठीक। स्ट्रक्चर क्या है, देखो पूरे 39 आर्टिकल्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहो तो वो छोटा सा ही है, वर्जन पढ़ सकते हो, मैं शेयर भी कर दूंगा। बट जो भी इम्पोर्टेंट है आर्टिकल्स और कहाँ पर क्या होगा, लेट मी जूम इट, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, शायद आपको दिखेगा। UCP 600 has 39 articles and this scope and application of the rules. आर्टिकल 1 ये बताता है कि भाई स्कोप एंड एप्लीकेशन कहाँ पर लगेगा और किस तरह से अप्लाई होगा, ये आर्टिकल 1 है। आर्टिकल 2 एंड 3 में डिफिनीशंस हैं, क्रेडिट, ठीक है, और क्रेडिट का मतलब क्या है, इस तरह के जो भी टर्म्स हैं यूज होने हैं वो आर्टिकल 2 और 3 में कवर कर दिए गए हैं। कि 4 to 13 तक ऑब्लिगेशंस एंड लायबिलिटीज, मतलब किस इश्यूइंग बैंक की और नेगोशिएटिंग बैंक की और एडवाइजिंग बैंक की कौन सी लायबिलिटीज होंगी, ठीक है, उनकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। ओके, ऑब्लिगेशंस मीन्स आप बोल सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओके, ये भी बोल सकते हो कि किसकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं किस बैंक की, वो इसमें कवर्ड है, ठीक है। एग्जामिनेशन एंड डीलिंग विद द डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल 14 to 17 ये बताता है कि डॉक्यूमेंट चेक, कंप्लायंस एंड डिस्क्रिपेंसीज को बताने के लिए आपको कितने दिन का टाइम है। ओके, ये याद रख लो, 5 वर्किंग मतलब 5 बिजनेस डेज, मतलब अगर फ्राइडे को ही डॉक्यूमेंट आया और सैटरडे संडे आपकी छुट्टी है, ठीक है, तो ये 2 दिन काउंट नहीं होंगे, ठीक है, ये 2 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल गए। वैसे तो बैंकर 24/7 काम कर रहे हैं अभी, किस्मत में ये ऐसा लिखा है, क्या करोगे, ठीक है। मिसलेनियस प्रोविजन, ये आप एक बार देख लेना, इसका ये अभी तक किसी से ये नहीं पूछा, कभी पूछा ही नहीं कि इस आर्टिकल में क्या है, बट ये आपको देख लेना है, आर्टिकल 14 to 17, ठीक है। डॉक्यूमेंट चेकिंग, कंप्लायंस एंड देयर रिप्लाई, ठीक है। नाउ यूनिफॉर्म रूल्स फॉर रिम्बर्समेंट, दिस इज द URR, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा गया था, जब UCPDC है तो URR की जरूरत क्या है, ठीक है, URR की जरूरत क्यों है जबकि UCPDC इज अवेलेबल। ओके, सी, ये यूनिफॉर्म रूल्स है, यूनिफॉर्म रूल्स फॉर बैंक टू बैंक रिम्बर्समेंट्स मतलब भाई बैंक को स्टार्ट में तो कुछ मिलता ही नहीं है ना, केवल डॉक्यूमेंट मिलते हैं, पैसे तो बाद में मिलते हैं, ठीक है। बैंक इन सब, ये बैंक ये है, ये बैंक भी है, ये डॉक्यूमेंट्स में तो डील कर लेंगे किस तरह से डॉक्यूमेंट को हैंडल करना है। ये एक्सेप्टेंस का टाइम 5 डे है, तो 5 डे में एक्सेप्टेंस दिया कि नहीं दिया, 5 डे में एक्सेप्टेंस नहीं दिया तो ये एक्सेप्टेड माना जाएगा। अब अगर इसने 5 डे में एक्सेप्टेंस नहीं दिया और उसको एक्सेप्टेड माना गया, तो फिर अब वो इस एलसी में डिस्क्रिपेंसी भी नहीं निकाल सकता है। ओके, ये सब गाइडलाइन है। मतलब एक्सेप्टेड का मतलब ये हुआ कि आपने उसमें ये माना जाएगा कि कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है,
अगर आपसे बाई चांस ऐसा हो गया है तो यू मे कोऑर्डिनेट विद द बैंक, ओके। यूसीपीडीसी के हिसाब से तो आपका गेम हो गया, वो एक्सेप्टेड हो गया, ठीक है। बट ये बैंक टू बैंक पैसे की क्या जिम्मेदारी है, मनी जो इन्वॉल्व है उसको कैसे हैंडल करेंगे, ओके। जो मनी इन्वॉल्व है उसको इंटरव्यू में ये पूछा गया था कि भाई यूसीपीडीसी है तो यूआरआर की जरूरत क्या है। आपको बताना है सर, यूसीपीडीसी है, डॉक्यूमेंट किस तरह से हैंडल किए जाएंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट चेक कैसे किए जाएंगे, डॉक्यूमेंट का कंप्लायंस आपने कैसे दिया है, डॉक्यूमेंट की डिस्क्रिपेंसी का क्या टाइम लाइन है, किस तरह से डिस्क्रिपेंसी कौन कौन सी स्पेसिफिक आप निकाल सकते हो, किस तरह की डिस्क्रिपेंसी डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड है तो क्या है, क्लॉज्ड है अगर एलसी किस तरह से तो क्या है, इसको हैंडल करने का तरीका है। बट एक बैंक की फाइनेंशियल लाइबिलिटी दूसरे बैंक के रिस्पेक्ट में या जितने भी बैंक इन्वॉल्व हैं, मान लो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ए बी सी, इशूइंग बैंक है, एडवाइजिंग बैंक है, नेगोशिएटिंग बैंक है, ओके। इन तीनों में जो फाइनेंशियल डीलिंग होगी, ठीक है, मींस फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो किस तरह से डील होगी, ये यूआरआर 725 में है। यूआरआर 725 इज एन आईसीसी पब्लिकेशन नंबर, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था ना कि ये जैसे यूसीपी 600 है तो हम बैंक से कुछ भेज रहे हैं तो उसका रेफरेंस नंबर लिखते हैं, सिन नंबर HRMD, ऐसे ये भी एक पब्लिकेशन नंबर है। क्या 725 का कोई सिग्निफिकेंस है? नो सच सिग्निफिकेंस, बस दिस इज द पब्लिकेशन नंबर, ओके। विद दिस रेफरेंस नंबर आप अगर URR 725 करते हो तो 725 में क्या क्या है वो आ जाएगा, ठीक है। इट हैज बीन इफेक्टिव अक्टूबर 2008, भाई वो जुलाई 2007 में आया तो 2008 में इसको भी मॉडिफाई करना था। क्यों? क्योंकि इसमें भी बैंक डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के फाइनेंशियल डीलिंग में इन्वॉल्व है, भाई किसकी क्या फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किस तरह से रिम्बर्समेंट होगा इस फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ओके। अब ये URR 725 अप्लाइज टू बैंक रिम्बर्समेंट अंडर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स, ओके। सी, अच्छा हमें कैसे पता चलेगा, वन मोर क्वेश्चन, ये दिस वाज नॉट आस्क्ड इन द इंटरव्यू बट इट मे बी आस्क्ड। हमें कैसे पता चलेगा कि ये यूसीपीडीसी वाली एलसी है या ऐसी एलसी है जिसमें यूसीपीडीसी अवेलेबल? तो जो भी एलसी का ड्राफ्ट होता है, एलसी का ड्राफ्ट, एलसी का क्या कॉन्सेप्ट है, पहले एक ड्राफ्ट तैयार होता है, ठीक है, वो बेनिफिशियरी को भेजा जाता है, ठीक है, इशूअर को नहीं, जो इशू करा नहीं उसे नहीं, वो उसमें सब लिखा रहता है कि ये एलसीपी लेटेस्ट यूसीपीडीसी, तो आप लेटेस्ट की जगह अगर यूसीपीडीसी 600 भी लिख दोगे तो लेटेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लेटेस्ट ही है। अगर आप वर्जन कोड कर रहे हो तो लेटेस्ट लिखने का जरूरत नहीं है, बट लिख भी दियो तो कोई इशू नहीं है। तो वो उस पर साइन करके एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ भाई हम यूसीपीडीसी 600 के थ्रू ये डील करेंगे। तो सभी टर्म्स एंड कंडीशंस जिस तरह से डॉक्यूमेंट डील होना है, अब वो यूसीपीडीसी की गाइडलाइंस के हिसाब से ही डील होगा, ओके। इस तरह से हमें पता चलता है। तो अगर ये बैंक पूछती है तो आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको बोलना है सर इट मस्ट बी मेंशन्ड on LC draft which has been sent to beneficiary for the acceptance of the same. If beneficiary accept that LC draft under UCPDC 600, then only he will be legally binding on the beneficiary. See, once again I say UCPDC 600 is not legally binding on any country. किसी कंट्री पे यूसीपीडीसी जबरियन थोपा नहीं जा सकता कि भाई आप यूसीपीडीसी से ही करोगे। आपको यूसीपीडीसी नहीं मानना है, आप कुछ मत मानो, आप एलसी ड्राफ्ट भी मत भेजो, अपना डीलिंग कर लो, पैसे आ गए तो ठीक, नहीं आया तो फिर जाओ इंटरनेशनल कोर्ट, आर्बिट्रेशन। तो तभी पॉसिबल है ना जब आपने किसी कॉमन लॉ के थ्रू काम किया हो।
भाई अगर एक गेम है उसमें 10 लोग 10 जगह से हैं, तो ऐसा नहीं है कि 10 लोगों के लिए अलग अलग रूल बनाया जाएगा। भाई तुम यहाँ से हो तो तुम्हें 10 मीटर दौड़ना है, तुम यहाँ से हो तुम्हें 50 मीटर दौड़ना है। नो, सबके लिए 10 मीटर और कितना टाइम है वो सेट किया जाएगा। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनमें यूसीपी डीसी इसलिए आपको कराना है, एक्सेप्ट कराना है, ताकि एक कॉमन लॉ के थ्रू आप डील कर सको और आपको पता रहे कि अगर कोई भी इवेंट होती है, इन केस मिस हैपनिंग होती है, तो हम किस तरह से इसको डील करेंगे। ओके, सी अगेन, दिमाग में बना लो, यूसीपीडीसी की कोई लीगल फोर्स नहीं है, ठीक है, मीन्स लीगली बाइंडिंग नहीं है, बट अगर बायर और सेलर आपस में इसको एक्सेप्ट करते हैं थ्रू अ ड्राफ्ट और एग्रीमेंट एंड साइन इट, इट बिकम्स लीगली बाइंडिंग ऑन बोथ। सी एप्लीकेशन ऑफ URR 725, URR 725 का एप्लीकेशन है, द issuing bank is responsible for specifying that reimbursement are subject to URR 725 to the documentary credit। मतलब सिंपली अभी ये इसके कहने का मतलब ये है कि भाई उसमें URR लगा होगा कि नहीं। अब देखो, सी वन थिंग, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपको कि कस्टमर URR 725 नहीं चाहता। कस्टमर जो बोल रहा है, मतलब जो LC इशू करवाने आया है, वो कह रहा है UCPDC 600 तो ठीक है, बट हम URR 725 नहीं चाहता। तो सुनो भाई, कस्टमर से तो कोई मतलब ही नहीं है, उससे बोलो भाई तू चुप कर, अभी ठंड पड़ जा, हैं, ठीक है। ये बैंक टू बैंक रिम्बर्समेंट है, एक बैंक दूसरे बैंक से किस तरह से पैसा कलेक्ट करेगा ये उसके लिए है, तो कस्टमर का इसमें कोई रोल नहीं है। आपको इंटरव्यू में ये फंसा सकता है। अगर कोई अच्छा नॉलेजेबल ट्रेड फाइनेंस का ऑफिसर आपका इंटरव्यू ले रहा होगा तो ये चीजें घुमा फिरा के पूछ सकता है। See, if customer is not accepting that, he would not be accepting URR conditions, URR 725 conditions, you may say, sir, actually this is not specific to the customer and customer has no role in it. This is specific to banks. No, URR is specific to banks. मतलब बैंक ही URR, अच्छा बैंक क्या करेगा, जो इशूइंग बैंक होगा वो रिम्बर्समेंट के लिए उसमें स्पेसिफाई करेगा कि रिम्बर्समेंट आर सब्जेक्ट टू URR 725 ICC पब्लिकेशन दिस, ठीक। सच MT 700, देखो 7 सीरीज का कोई भी मैसेज है तो वो L6 से ही रिलेटेड है, क्रेडिट मैसेज, ठीक है। तो 700 इशू ऑफ ए डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, अगर आप स्विफ्ट मैसेज इशू करते हो MT 700 जाता है डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट इशू करने का। URR latest version indicates URR rules apply, non-URR indicates that UCP 613 applies instead of URR। मीन्स अगर URR नहीं अप्लाई होता है तो UCP का आर्टिकल 13 रिम्बर्समेंट की बात करता है। सी, अब अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में कि सपोज बैंक फॉरगेट टू कोट, जो इशूइंग बैंक है, ठीक है, वो उसने उस पे लिखा ही नहीं, वो भूल गया, टाइप ही तो होता है, जनरेट क्या टाइप होता है, वो जनरेशन में भी आपको पहले से उस सिस्टम में पढ़ा होगा, तभी मान लो सिस्टम में यस की जगह नो हो गया, नहीं सिलेक्ट हुआ, ठीक है, तो कैसे रिम्बर्समेंट लेगा। तो आपको बोलना है सर, इवन इफ URR 725 is not quoted by the issuing bank, in this case the bank still may collect, okay, its financial gains, financial reimbursements from the bank under Article 13 of UCPDC, which is already applicable as quoted in LC draft, ठीक है। अगर आपसे वो पूछे कि भाई ये सब चीजें कहाँ लिखी होती हैं, आप कैसे डिसाइड करोगे, आप बोलोगे सर एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन LC ड्राफ्ट, ठीक है, LC ड्राफ्ट। क्या LC ड्राफ्ट में आपका लोन नंबर मेंशन होता है? नो।
एलसी नंबर, यस एलसी आप जो इशू करोगे, आप देखो ड्राफ्ट का नंबर से मतलब नहीं, एलसी नंबर तो एलसी इशू होने पे होता है। अगर उसको ड्राफ्ट एक्सेप्ट हुआ तो यू विल इशू द एलसी। तो इस तरह से एलसी का नंबर भी उस पे नहीं होता। अभी बैंक के ऊपर है कि भाई वो कोई प्रॉपर एक रेफरेंस जनरेट होता है, और किसी बैंक में अगर ऐसा होता हो भाई वो रेफरेंस ही एलसी नंबर होता हो, देन इट में बी कोटेड एज द एलसी नंबर। ओके, ठीक। बट रेफरेंस नंबर सबका यूनिक होता है, सेंडर बैंक का भी, जो बैंक आपको भेजेगा उसका भी रेफरेंस नंबर यूनिक होगा, और आप जो भेजोगे उसका भी रेफरेंस नंबर। इसी रेफरेंस नंबर के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। ओके, डिफरेंसेस ये इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेना। यूसीपी 600 एंड यूआरआर 725। यूसीपी 600 यूआरआर 725 क्या करता है? गवर्न्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स। URR 725 फोकसेस ओनली ऑन बैंक टू बैंक रिम्बर्समेंट। तो क्या यूसीपी में ऐसा है क्या? हाँ, आर्टिकल 13 आपके लिए रिम्बर्समेंट का ही काम करता है। आप वहां से रिम्बर्समेंट यू में एक्सेप्ट। ओके, यू में डील। सिग्निफिकेंस एंड कंक्लूजन आप उसमें पढ़ना। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, एलसी एंड पीजी। ओके, एलसी पे हम इसके बाद एक नया वीडियो डालेंगे, एलसी पे भी और बैंक गारंटी पे भी। ठीक है, एलसी में किस तरह से इशू होता है और एलसी का असेसमेंट आप किस तरह से करते हो। देखो हर बैंक में अलग रूल है, अलग मार्जिन की कंडीशंस है, अलग नेटवर्थ की कंडीशंस हैं, एवरीथिंग। ठीक है, तो आपको अपने बैंक का याद रखना है। आपको एसबीआई का नहीं याद रखना अगर आप एसबीआई जा रहे हो। आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का नहीं याद करना अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा जा रहे हो। ठीक है, आपको पीएनबी का नहीं याद रखना अगर आप पीएनबी जा रहे हो। आपको अपने बैंक में, इन विच बैंक यू आर वर्किंग एट प्रेजेंट, you must know the all margin requirements and documentation requirements, net worth requirements, okay, collateral requirements, ठीक है, and turn around time, what is state of your bank for important, okay, keep it, see, लेटर ऑफ क्रेडिट पे, इस पे हम सोच रहे हैं कि इस पे एक नया ही वीडियो बना देंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो आपको पता ही होगा कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट में फंड्स किसके लगते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट के आपके बैंक के चार्जेस कितना है इशू करने का, ये याद रख लेना। बच्चों से इंटरव्यू में पूछा गया था व्हाट आर योर चार्जेस फॉर एलसी, उसको नहीं पता था। ठीक है, आप बोल सकते हो सर चार्जेस आर, अगर नहीं पता है तो आप इस तरह से बोलो सर चार्जेस आर स्पेसिफिक एंड दे आर नॉट डिस्क्लोज्ड इन द मार्केट बिकॉज ऑफ सच कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। okay, these are based on some factors, I can say, but with the base of the customer, what is our relationship long lasting with the customer, how it is a prime customer or not. Okay, but I cannot tell my pricing for the LC because it may be harmful for my perspective of my बैंक पर। अगर आपको नहीं आ रहा है तो, अगर आपको आ रहा है तो आप बता भी दो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर ये पूछेगा कि भैया आपने अपने बैंक की प्राइसिंग बता दी, हम घटा लें, तो आप कर सकते हो सर। नाउ डेज दिस इज नॉट टू मच डिफिकल्ट टू नो अबाउट द प्राइसिंग ऑफ अदर बैंक। आज के टाइम में किसी बैंक के लोन की प्राइसिंग या किसी भी, आप हाउसिंग लोन का प्राइसिंग तो बता रहे हो ना, प्रोसेसिंग नहीं लग रहा है, दैट इज आल्सो अ टाइप। ठीक है, तो अगर आपको भाई उस समय आपको कुछ आंसर देना है, अपने आप को बचाना है, तो इस तरह से कर सकते हो, बट बेटर है आप प्राइसिंग अपनी याद रखो। ओके, एलसी बीजी ये सब चीज़ें का ये थोड़ा सा ब्रीफ है, ये इसमें है, आप देख सकते हो। फर्दर यू मे फॉलो दिस चैनल फॉर द अपडेशन। आप पहले ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज आई वाज नॉट कंटिन्यूअस इन दिस, बट नाउ आई एम फीलिंग not completely better but better, so I decided to make this today. Hope you will find it useful, and thank you for being with Exam Zone 24/7. If you want to know, just quote. Okay, this is the number, you may text for the courses, and others for the PDF also you may text. Further the same will be shared in the group.
Okay, and do not share on words. Okay, this is for you people only. Thank you. We will meet again.